Hi friends, so welcome to the third episode of Quillathon series that we have been running for the past 3 days, and it's the third episode today. So I'm just waiting for some people to join in if anyone live on YouTube is interested, they can join, and then we will just start with our session. Hello, Kamal. Hi. This is the very third episode of our series Quillathon that we have initiated for a week. और आज इसका third day है. तो in the past 2 days we have created two different things. And as I said कि आज हम Christmas से related ही कुछ करेंगे. तो yes, I was about to make Santa, but then at the very moment I got short of some red strips. So today we are going for the Christmas tree and for the Santa. Yeah, tomorrow Santa is done. Tomorrow we will be making the Santa, and if possible, I will try to make the Santa Claus with the 3D quilling so that the people who are new here and who don't have idea about 3D quilling, they can have a look of it. I have a doll not a doll, you can say a cartoon character that I made, Powerpuff Girl, you must have heard. So I will just show you that. uh, just a second. So this is that Powerpuff Girl that is made using the 3D quilling. So you can say I just got it framed in a box frame. Okay. That's great. You also made Shiva, Krishna, Ganesha, and Mickey Mouse. That's great. So this is the doll, and it's made in 3D. Okay, as you all can see. I hope it's visible clearly. It's clear. Okay. So yes, that's the 3D doll. So today we are making a Christmas tree. I have made one earlier, and you can find a video for that on my channel. But today I'll try making it with some different like something different. So this is I made, but today what we'll be making is it'll also have a star on the top and something like that I have in my mind, and we'll try to create that. So I also hi. So this is the like Hamza which I created recently. So the patterns you are seeing over here, we will be using the same patterns for our Christmas tree. That is why I am just showing this to you. So this is a little design that is red, white on red. Okay. So we will just start with our Christmas tree, and if you haven't subscribed to the channel, then please do subscribe. And uh, two episodes has already been completed, so if you want to watch those two episodes, तो मैं उसका लिंक यहाँ पर अपडेट कर दूंगी. once the live ends I will upload it in the form of a video, और यहीं ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा. आप डायरेक्टली क्लिक करके उस लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं. ओके. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन. And today we are making Christmas tree because it's something related to Christmas, and tomorrow we will be coming up with the Santa Claus. Okay, whether 3D or 2D, but it will be Santa.
so that we can have, we already made Christmas decor, that's some snowflake. We today will be making Christmas tree. We already did a card yesterday, which you can give to your friends on any of the occasion. It can also be Christmas. So today we are going for Christmas cards, so we are just preparing for Christmas, I think. Okay. Okay, so Kamal, like I told in my previous sessions also, I don't like we don't sell quilling strips for now. We are selling paper. Like if you want the variety of sheets, papers, then we can provide it to you. But for quilling strips, currently we are not dealing in that. If in future this happens, I will surely let you know. Yeah. So for now, we are starting with our Christmas tree, and for that I am using some green, blue, whatever shades, like some dark, some light. Okay. So if you are making it with me, you can choose the shades that you have. If you don't have green, then you can go for some creamish shades or some light shades also. Whatever shades are available with you, you can just go with them. Okay. So once again, I would like to tell you all that this is a series known as Quillathon that I have initiated on YouTube for a week, where every day at 8:30 p.m. we come live and we do quilling. And if you or any of your friends, relatives, neighbors are interested in doing such crafts, or they are also a craft enthusiast, then do share it with them too. They can also join me and we can do the quilling together. So it'll be fun. It's a fun session. So, okay. So, firstly, for making a Christmas tree, I will tell you some tricks you can say, or there are some tips that you can follow. So, firstly, I have taken this blank sheet of paper so that I can make a Christmas tree. As I told in previous sessions, we are making things जिसे कि हम फ्रेम भी करा सकते हैं और जिसे हम कार्ड की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो आज भी हम कुछ ऐसा ही बना रहे हैं क्रिसमस ट्री एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर. अगर आपको इसे कार्ड की फॉर्म में रखना है तो आप इसे डबल साइडेड, लाइक जैसे कार्ड होता है, आप वैसा शीट ले सकते हैं और उसके ऊपर आप क्रिसमस ट्री बना सकते हैं. और अगर आपको सिंपल आप इसे ऐसे ही बना रहे हैं फ्रेम के फॉर्म में, तो फिर आप सिंगल शीट ऑफ पेपर भी ले सकते हैं. अब बात करते हैं बेस शीट की. तो बहुत बार जब हम क्विलिंग करते हैं तो वी डोंट हैव आइडिया कि हम बेस पर कैसी शीट यूज़ करें. एज इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था क्विलिंग तो मैं भी इतना अवेयर नहीं थी. तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि जब मैंने ऑन एज क्विलिंग किया तो मैंने क्या किया, मतलब द मिस्टेक आई डिड वॉज, मैंने एक बेस पेपर लिया क्योंकि उस टाइम मुझे पेपर का भी कोई आइडिया नहीं था. और जो मैंने बेस पेपर लिया वो वो बहुत ही लाइटर जीएसएम का था. तो जब मैंने उसके ऊपर क्विलिंग करना स्टार्ट किया, ग्लू लगाया, ग्लू किया, तो वो पेपर लाइक इट वाज लाइक कि अभी जैसे होता नहीं कि चीज़ कुछ मेल्ट हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा वो पेपर एक तो थिन था. तो वो क्विलिंग वर्क पूरा मेरा इट वाज अ फ्लॉप शो यू कैन से. तो इसीलिए बेस पेपर हमेशा आपको जब भी लेना है क्विलिंग के लिए, तो बेस पेपर आपका थोड़ा सा हायर जीएसएम का होना चाहिए. यू कैन ऑल्सो यूज कार्ड स्टॉक फॉर दैट. ओके, तो सबसे पहले ऑन एज क्विलिंग स्टार्ट करने का यही एक टिप मैं कहना चाहूँगी है कि आपका बेस पेपर जो है, कल भी हमने जो कार्ड बनाया था उस पे जो बेस पेपर मैंने लिया था वो भी हायर जीएसएम का ही था. तो मोस्टली जब भी हम क्विलिंग करते हैं आप ट्राई कीजिए कि जो भी आप बेस पेपर ले रहे हैं वो आपका बेस पेपर एक हायर जीएसएम का हो फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, उसके बाद हायर जीएसएम का हमने पेपर लिया. अब इसका बेनिफिट ये है कि अब जब हम उसके ऊपर वर्क करेंगे तो ये पेपर ऐसे नीचे की तरफ गिरेगा नहीं, ये आपको ऐसे मेल्टेड फॉर्म में नहीं दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल जब हम वाटर कलर्स करते हैं तो वाटर कलर के लिए जो हम शीट यूज़ करते हैं वो हम करते हैं वाटर कलर पेपर, जो कि हायर जीएसएम का होता है. क्योंकि अगर हम नॉर्मल A4 साइज़ का जो प्रिंटिंग पेपर होता है या कोई ऐसी शीट यूज़ करेंगे
तो उसके ऊपर क्या होगा, हम पानी वाटर कलर का यूज़ कर रहे हैं तो वो शीट बहुत ज़्यादा आपकी गीली हो जाएगी और बहुत बार तो फट जाती है, ड्रिप होने लगता है। तो सेम है, क्योंकि ग्लू भी थोड़ा सा वेट होता है, तो इसी के लिए हम हायर जीएसएम ऑफ पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। हायर जीएसएम मीन्स योर पेपर शुड बी मोर देन 250 जीएसएम, ओके। उसके बाद अब हम क्विलिंग स्ट्रिप्स की बात करते हैं। तो क्विलिंग स्ट्रिप्स आप नॉर्मल 120 जीएसएम से अगर ज़्यादा की लें ऑन एज क्विलिंग के लिए तो इट वुड बी बेटर। प्रेफरेंस जाता है अगर ऑन एज क्विलिंग में तो वो 140 160 जीएसएम, और बाकी 120 जीएसएम से भी आप काम कर सकते हैं। लाइक अगर आप उसमें थोड़ा सा आपने वर्क किया है और आपका थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस है तो आप 80-90 जीएसएम से भी कर लेते हैं, बट जो वर्क आपको ज़्यादा एनहांस्ड अच्छा लगेगा वो अगर आप मोर देन 120 जीएसएम करेंगे तो इट विल बी बेटर। जैसे मैंने इसमें जो यूज़ किया है, जो आउटलाइनिंग के लिए मैंने पेपर यूज़ किया है दैट इज़ अराउंड 250-280 जीएसएम, और जो अंदर मैंने वाइट का यूज़ किया है ये वाइट है आपका 180 जीएसएम, ठीक है। तो जीएसएम अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्विलिंग में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप राइट पेपर यूज़ कर रहे हैं या नहीं, एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस सेशन ऑल्सो। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द क्रिसमस ट्री, तो उसमें मैंने आपको बताया हम कुछ ऐसा ही पैटर्न यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। मैंने आपको बताया हम कुछ ऐसा ही पैटर्न यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैंने अभी लिया है ग्रीन शेड, ओके। और सबसे पहले अब क्रिसमस ट्री का फॉर्मेशन। अब सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ अगर बनानी है तो सबसे पहले हमें उसकी बेसिक फॉर्म्स को देखना होता है। ये एक ड्राइंग का भी रूल होता है कि अगर आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी बेसिक फॉर्मेशन को देखना है। इवन हम जब ह्यूमन फिगर्स या फिर स्टिल ड्राइंग्स भी करते हैं तो उसमें भी हमारा जो मेन फोकस पहला होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर पर होता है, बेसिक फॉर्मेशन पर होता है। तो अब अगर मैं क्रिसमस ट्री सोचूं तो मेरे माइंड में एक ट्री का इमेज कुछ ऐसा होगा, ठीक है। लाइक इट्स अ, यू कैन से, अगर मैं शेप की बात करूं तो वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब हमें क्रिसमस ट्री, क्योंकि हम पैटर्न से बना रहे हैं, हम अभी क्विलिंग के रोलिंग पैटर्न्स लेंगे, हमारे पास कोई यहाँ पे ड्रॉ क्रिसमस ट्री नहीं है जिसके अंदर हम फिल करते चले जाएंगे। वो भी एक तरीका होता है कि आपने एक ड्रॉ कर लिया उसके बाद आपने कुछ भी पैटर्न उसके अंदर फिल कर दिया, बट हम यहाँ पर वो वे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको माइंड में ध्यान रखना होगा कि जो फॉर्मेशन जाएगा पूरा ट्री का वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रिप ले ली। यस, श्योरली वी विल मेक अ स्मॉल स्टार ऑन द ट्री एंड वी विल सी हम उसे कैसे बनाएंगे, क्योंकि स्टार को हम बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं। हम ट्राइंगल शेप्स लेके ट्राइंगल शेप्स डिफरेंट डिफरेंट ज्वाइन कर सकते हैं, एक वो तरीका है। ट्राइंगल शेप मैं आप लोग को बनाना बता दूंगी, लाइक इट्स वेरी सिंपल। जैसे हमने कल के सेशन में टीयर ड्रॉप शेप्स बनाए थे वैसे ही हम ट्राइंगल शेप्स बनाते हैं, ठीक है। तो या तो एक ये तरीका हुआ। अब अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊं, वेट अ सेकेंड, तो जो बेसिक ट्री का फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसा होता है ना। अब जो भी पैटर्न या कुछ भी होता है अब वो इसी के आसपास होता है। अब वो चाहे ऐसा कुछ डिज़ाइन आ जाए या फिर कुछ इसमें ये वाला डिज़ाइन आ जाए सर्कुलर वाला, लेकिन उसका जो बेसिक फॉर्म होगा वो ट्रायंगल रहेगा, तो हमें उसको नहीं भूलना है, ठीक है। सबसे पहले हमें ट्रायंगुलर फॉर्म, हमें सबसे पहले कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं हमें उसकी बेसिक फॉर्म को ध्यान में रखना है। जैसे मैंने ये हमजा बनाया था तो इसका बेसिक फॉर्म एक हैंड की तरह ये दिख रहा है, तो बेसिक फॉर्म वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हम पैटर्न ड्रॉ करते जाएंगे वो हमें देखना है कि वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ही जाता जाए, ठीक है। अब अगर आपको आइडिया है कि लाइक हाँ ये मेरा ट्रायंगुलर फॉर्म शेप सही जा रहा है, वरना आप ऐसे पेंसिल से ऐसे एक नॉर्मल एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं और उसके अंदर अंदर आप अपने जो भी मैं अभी आपको पैटर्न बताऊंगी उसको आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे करके आप एक मतलब स्ट्रिप को ऐसे करके प्लेस कर सकते हैं जिससे कि आपको आइडिया रहे कि आपको इसके अंदर अंदर ही फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे बॉटम से, ठीक है। तो अब मैंने तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेड्स लिए हैं ग्रीन के। आप चाहें तो आप रेड,
गोल्डन, सिल्वर, ऐसे कुछ शेड्स अगर आपके पास हैं तो आप उन्हें मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे क्रिसमस ट्री। तो मेरे पास ये स्ट्रिप है, मैं इसको कुछ दो पार्ट में फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद क्विलर की हेल्प से ये जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न में मतलब ये पैटर्न बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन जो क्लैरिटी होती है इस पैटर्न में, जो सेंटर होता है वो इतना क्लियर नहीं आ पाता। रीज़न बीइंग क्योंकि हम यूज़ करते हैं क्विलर का। अब अगर क्विलर भी अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग टाइप्स के आते हैं, जैसे ये आगे से राउंडेड शेप्ड है, बहुत सारे ऐसे नीडल टाइप कुछ इस टाइप की शेप में आते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपका बीच का मिडल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा रह जाता है, और इसीलिए वो थोड़ा सा अनक्लियर दिखता है। बट इफ़ यू आर लाइक स्टार्टिंग, तो दिस क्विलर इज़ बेस्ट। इसमें इतना ज़्यादा स्पेस आपका बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसको एक साइड से रोल करना स्टार्ट किया। उसके बाद जब ऑलमोस्ट मेरा हाफ रोल हो गया, मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इसको रोल करना स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट साइड से। अब मैंने इसको नेक्स्ट साइड से रोल करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसा आ गया, यू कैन सी, ठीक है। अब अगर मुझे इसे थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा छोटा करना है, तो मैंने इसको वापस से ओपन किया एंड फिर मैं इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से कर लूँगी, ठीक है। वापस से रीओपनिंग एंड दिस। और अगर आपके पास क्विलर नहीं है, या फिर अगर ये वाली शेप्स ऐसी होती हैं जिन्हें कि अगर हम हाथ से बनाएं तो वो हमें ज़्यादा क्लैरिटी देती हैं। बस मेरा आपको बताने का यही मतलब था। अब देखो, इसको मैंने और ओपन अप कर लिया तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो मैं इसको यहाँ पर अभी के लिए प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। अभी मैंने एक कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये मैंने साइड में ट्रायंगल फॉर रेफरेंस रखा है, और मैं इसको अभी कुछ ऐसे प्लेस कर रही हूँ। अभी मैंने इसको पेस्ट नहीं किया है, अभी मैं जस्ट इसको ऐसे ही प्लेस कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने हाफ स्ट्रिप ली थी, लेकिन इसको बनाने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि मैं फुल स्ट्रिप ले सकती हूँ, ठीक है। तो मैं अब इसे फुल स्ट्रिप से बनाऊंगी। मैंने इसको रोल किया पहले वन साइड को, और फिर हाफ से मैं करूँगी इसको अलग साइड में रोल, जिससे कि एक एस शेप ले लेगा, ठीक है। सेम आपको करना है कि एक एस शेप ले ले, और इसे मैं आपको हाथ से रोल करके दिखाती हूँ। मैंने क्विलर से आगे से इसे कर्व किया है बस, और इट्स नॉट अ कंपल्शन कि आपको भी हाथ से करना है। यू कैन यूज़ क्विलर, क्विलर्स आर फॉर हेल्प ओनली। तो अगर आप हाथ से नहीं कर पा रहे हैं, क्विलिंग नीडल की हेल्प से कीजिए, दैट इज़ फाइन। अब मैंने इसको यहाँ से रोल करना स्टार्ट किया है, ओके। और इसमें डिफरेंस बस क्लैरिटी का आता है थोड़ा बहुत, क्योंकि क्विलर जो है वो ऑब्वियसली उसके बीच में जितना गैप है वो उतना स्पेस लेगा ही लेगा। बट जब हम इसे हैंड से करते हैं तो स्पेस मिनिमाइज हो जाता है, जो सेंट्रल स्पेस होता है। जिन लोगों ने क्विलिंग किया हुआ है पहले, दे मस्ट बी नोइंग इट कि हाँ ये चीज़ होती है। और इसीलिए बहुत सारे आर्टवर्क्स ऐसे होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि उसमें सिंपल राउंडेड कॉइल्स का यूज़ किया गया है, और उसके बावजूद लाइक पीपल से दिस कि वाई दे आर सो कॉस्टली, दे हैव यूज द सेम पैटर्न, ये सिर्फ राउंडेड कॉइल्स ही हैं। लेकिन दे डोंट नो कि उसका जो पैसा है वो आइडिया का है। और सेकेंड थिंग इज़ कि उन्होंने वो सारी चीज़ें हैंड, मतलब बाय हैंड दे आर क्रिएटिंग इट। तो आप सोच सकते हो एक कॉइल बनाने में कितना टाइम लगता है, और उसके बाद जो आपके फिंगर्स जवाब देती हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो अब आप देखो, एक ये पैटर्न है, एक ये पैटर्न है। इसका सेंटर पार्ट आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा, और इसका सेंटर पार्ट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि एक क्विलर से बनाया है, बट स्टिल इट इज़ गुड। तो इसीलिए क्विलर भी आप देख लो, मतलब अगर से आगे से राउंडेड वाला आप यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो अभी मैंने नीचे के दो कॉइल्स बनाए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कुछ एक डिफरेंट ग्रीन ट्राई करूँ, तो मैं ये वाला ग्रीन ट्राई कर रही हूँ। इसको मैं दो पार्ट में कट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बॉटम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, हमें जो ज़रूरत है स्ट्रिप्स की वो कम कम पड़ती जाएगी, क्योंकि हम ऐसी फॉर्म बना रहे हैं तो नीचे हमें ज़्यादा बड़ी स्ट्रिप्स चाहिए, ऊपर के लिए स्मॉलर वंस आर फाइन।
तो आई एम रियली होपिंग कि ये जो प्री निकल के आएगा जो मैंने पहले बनाया है उससे थोड़ा बेस्ट आएगा। लेट्स सी। और अगर आप लोग नए हैं क्विलिंग में या फिर आप फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं तो आप पहले के भी 2 एपिसोड ज़रूर देखिए, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है जिसके अंदर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट क्विलिंग, वी आर जस्ट डूइंग क्विलिंग। और अगर आपकी कोई स्टिल अगर आप लाइव नहीं अभी देख पा रहे हैं एंड यू हैव एनी क्वेरीज, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिवर्ट बैक टू यू विद द प्रॉपर आंसर। उसके बाद मैं इसको खोल कर इसको जितना लाइक टाइट लूज करना चाहूँ आई कैन डू दैट। ओके। और क्विलिंग में एक और टाइप कहूँगी मैं लोग करते हैं कि वो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैं नॉर्मल प्लेन बेस पे कर रही हूँ तो उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज भी होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पैटर्न्स का यूज़ करते हैं। यस, वो पहले अपना जो भी दे वांटेड टू मेक उसको वो यू कैन से कि सिंपल उसको डिज़ाइन कर लेते हैं रफ, एंड देन उसका वो ही पैटर्न वो लोग यू कैन से उसको प्रिंट करा के एंड दे जस्ट लाइक मेड एज पर दैट। बट आई डोंट फॉलो दैट। तो yes, for some projects you need rough designing and rough designs, बट ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी मोस्ट मोस्ट पीपल यूज़ पैटर्न्स। और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं क्विलिंग की तो आई थिंक इट्स लिटिल ईजियर फॉर यू टू डू विद दैट, क्योंकि आपको पैटर्न रहेगा तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा उसको समझने में, उसको करने में। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग ये भी फॉलो करते हैं कि वो अपना जो बेस है उस पर कलर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने बेस को एक कलर दे रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। मतलब कि आपने क्योंकि जब हम क्विलिंग कर रहे हैं तो जैसे अब ये पैटर्न है तो इसमें कुछ वाइट स्पेसिंग आपको दिखता है, बट आई फील कि वो वाइट स्पेसिंग मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, बट बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना कि वो वाइट स्पेस अच्छा नहीं लग रहा है तो वो क्या करते हैं, बेस में कलर कर लेते हैं। ठीक है, अब कलर कर लेते हैं जैसे अभी हम क्रिसमस ट्री बना रहे हैं तो वो पूरा एक ट्राइंगुलर फॉर्म में कलर कर लेंगे नीचे, वाटर कलर, पेंसिल कलर, एनी कलर, और उसके बाद वो उसके ऊपर ऊपर ये पैटर्न को पेस्ट करते चले जाएंगे तो वो थोड़ा सा ईजियर हो जाता है। तो अगर आप लाइक अगर आपको नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो आप यही कर सकते हैं। हाँ, कलर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी से करना पड़ेगा। बट बहुत लोगों का मैंने देखा है कि वो रैंडम कलरिंग भी करते हैं, मतलब कि जस्ट ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, और स्टिल उसके ऊपर जब क्विलिंग आ जाती है तो वो एक थोड़ा सा अलग एसेंस दे देता है। कलरिंग भी है, बहुत सारे लोग पेंसिल कलर का यूज़ करते हैं और बहुत सारे वाटर कलर का, कई कई एक्रेलिक कलर्स का भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत कलरिंग का ज़रूरत होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइक देर आर डिफरेंट डिमांड्स फॉर डिफरेंट पीपल, है ना। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, तो बहुत सारे लोग ये डिमांड करते हैं कि नहीं, उन्हें थोड़ा सा फील्ड फील्ड वर्क ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा फील्ड सा रहे प्रोजेक्ट, तो दे लाइक लाइक इट मोर। अभी मैंने कुछ बनाए हैं अपने जो वो हैं और पैटर्न है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। वन स्ट्रिप लिया, इसको कर्ल किया ऐसे वन साइड, नाउ कर्ल फ्रॉम अदर साइड, और अभी मैं फिर इनको आपको पेस्ट करके दिखाती हूँ कि हाउ इट्स गोइंग। ओके, एंड इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी सिंपल टू मेक। अभी मैं लाइक बहुत ट्राई कर रही हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्विलिंग भी मैं आप तक ला पाऊँ। मतलब क्विलिंग क्या है इस क्विलाथॉन में आपको बेसिक पूरा क्लियर हो जाए, और बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ, जिससे कि अगर आप ऑलरेडी क्विलिंग करते हैं या उसमें कोई आप मिस्टेक कर रहे हैं तो आप उसको करेक्ट कर पाएँ। अभी ये पैटर्न मैंने बाय हैंड बनाया है, आप क्विलर का यूज़ करके बना सकते हैं, नो इश्यूज़ एट ऑल। ठीक है, तो अभी मैंने जितना बनाया है आई एम थिंकिंग टू पेस्ट दैट, और जिससे कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप उसको
कैसे पेस्ट कर सकते हैं। तो दिस पैटर्न इज़ क्वाइट सिंपल टू मेक और ये बहुत अच्छा भी लगता है बनने के बाद। तो कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। तो आई विल जस्ट टेक माई ग्लू इन अ रफ शीट एज आई डू। आपने फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि आई ऑलवेज प्रेफर टेकिंग ग्लू ऑन अ रफ surface and then it's quite easy to glue up। मैंने अपना ये फर्स्ट कॉइल लिया और इसको, ये ग्लू है, ठीक है, इस ग्लू के ऊपर मैं जस्ट ऐसे डैब करूँगी हल्का सा, एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं लेना है। यू कैन सी ग्लू इस पे पूरा आ चुका है। अब मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। सेम वे मैंने अपना एक और पैटर्न लिया है और उसको भी मैं इसी तरीके से ग्लू कर रही हूँ। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनकी ग्लूइंग टेक्निक्स की वजह से उनका क्विलिंग जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो दे कैन यूज़ दिस वे। तो बेसिक फॉर्म से मैं चल रही हूँ एंड बेसिक, आई जस्ट मिस द कॉमेंट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना इसको पेस्ट कर दिया है, देन यू कैन हैव एन आइडिया कि ये कुछ आपको कैसा दिखेगा। येस आई नो, आई हैव सीन हर वर्क। और ये जो पैटर्न मैं अभी बना रही हूँ तो इसमें जहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सारे पैटर्न्स जो हैं वो एक जैसे बनाने हैं। आप कोई छोटा कोई बड़ा इस तरीके से बना सकते हैं जिससे कि आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ लुक देगा। तो आप देखो, अभी मैंने कुछ इसको ऐसे पेस्ट किया है, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक एक ट्रायंगुलर फॉर्म रखा है अपने साइड में, ठीक है, और इसको मैंने कुछ ऐसा पेस्ट किया है और अभी ये मुझे यहाँ तक इसको मैं फिल करूँगी, ठीक है। उसके बाद अगर कहीं पर मुझे लगेगा कि मुझे फिल करने की और ज़रूरत है तो आई विल डू दैट। तो अभी मैं कुछ और ऐसे ही कॉइल्स बना लेती हूँ और इसमें इस पैटर्न को अभी हम 2 वे बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम 1 वे भी बना सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगी इसके बनने के बाद कि हम इसको कैसे 1 वे बना सकते हैं, ओके। So we are making a Christmas tree today with these patterns, you can see। And please do subscribe to the channel and do share it with your family, friends, whoever is interested in quilling. Just tell them about this and they can join this series। ये पूरा 1 वीक का सीरीज़ है जिसमें अभी ये 3rd एपिसोड चल रहा है। तो there are more to go, they can join us and they can also watch the videos on our channel। All these are like updated on the channel, so they can go and watch there। God frames, yes, I have made Shiva, I have made Ganpati, I have made this ये यू कैन सी दिस दुर्गा माता। ये सिर्फ मैंने एक फेस का उनका स्ट्रक्चर बनाया था और भी बहुत सारे मैंने गणपति काफ़ी बनाए हैं। गणपति
Shiva, I have made the Adiyogi form that you can find on my channel also. I am also there in social media sites, Instagram, Facebook, with the name of Royat Craft. You can find me there. So today we are making the Christmas tree. And tomorrow, yes, we'll be coming up with the Santa, maybe 2D or 3D, but it'll be Santa. Okay. So अभी हम ये पैटर्न बना रहे हैं. ओके. और इसको हम पेस्ट करते चले जाएंगे ट्रायंगल की फॉर्म में. एक बेसिक मैं आपको बता देती हूँ अभी तक हमने क्या किया है. वी आर ऑन द थर्ड एपिसोड ऑफ आवर सीरीज कॉल्ड क्विलेथॉन. और अभी हमने लास्ट 2 एपिसोड्स में वी हैव मेड द क्रिसमस डेकोर. फर्स्ट that was a snowflake, and in the second we have made a card with a heart shape and a flower in it and some balloons around. And आज हम बना रहे हैं Christmas tree by using these patterns. Okay, these simple patterns, and you can see how beautiful they look once they are like compiled up. Okay, अब मैं इसको अगर हटा दूंगी तो उसके बाद भी जब ये यहाँ तक पूरा ट्री चला जाएगा तो it will give a very nice look. और ये मैंने भी अभी ट्राई करने का सोचा क्योंकि अर्लियर मैंने क्रिसमस ट्री बनाया है और उसमें मैंने बहुत ही कम स्पेसिंग दिया है. तो लाइक ये बहुत पहले मैंने बनाया था, तो आई थॉट इसको कुछ रिन्यूड पैटर्न से अभी बनाते हैं. ठीक है, तो अभी कुछ और मुझे पैटर्न्स चाहिए होंगे एंड देन आई विल बी डन विद दिस. और उसके बाद अगर देयर विल बी टाइम तो हम इसके साइड में कुछ गिफ्ट बॉक्सेस बना सकते हैं. टॉप पर हम स्टार बनाएंगे. यस, ठीक है. तो वी आर वर्किंग विद इट एंड एज आई सेड बेसिक फॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट. तो पहले आप बेसिक फॉर्म जो भी आपको बनाना है उसका देख लीजिए एंड एज पर दैट यू कैन ईजिली मेक. पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट. आप क्या पेपर यूज़ कर रहे हैं, कैसा क्वालिटी ऑफ पेपर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और क्विलिंग में मैं ये भी बताना चाहूँगी, क्विलिंग में इट्स नॉट सिंपली लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था ना इनिशियली तो मुझे yes we can make small snowfall straws. There are many things actually we can do because it's Christmas. यस तो मैंने जब स्टार्ट किया था व्हाट आई वाज टॉकिंग, तो अभी इसमें मैं ग्रीन के मैंने 2-3 शेड्स ही यूज़ किए हैं. बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ शेड्स अभी नहीं यूज़ किया, मतलब सिमिलर कलर के ही डिफरेंट शेड्स यूज़ कर रही हूँ. अगर आप चाहें तो आप डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक अगर आप अभी यू वांट टू प्रैक्टिस इट और अभी आपके पास कुछ मटेरियल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दे लाइक आई गेट मैसेजेस कि वी लव क्विलिंग, वी लव टू जॉइन योर सेशन, बट अभी हमारे पास मटेरियल नहीं है, या फिर वी सॉ योर सेशन इट वाज नाइस बट हमारे पास मटेरियल नहीं है. तो अगर आपके पास मटेरियल अभी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कुछ कुछ मटेरियल्स ऑनलाइन मंगवा सकते हैं. ठीक है. सेकेंडली अगर आप देखना चाहते हैं पहले कि कैसे हो पाएगा, आप कर पाओगे या नहीं, तो आप जो भी आपके घर पर नॉर्मल स्टेशनरी मटेरियल है आप उसका यूज़ करके भी क्विलिंग ट्राई कर सकते हो, क्विलिंग स्टार्ट कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्ट्रिप्स नहीं है ना, तो क्विलिंग स्ट्रिप्स अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी खुद की स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हो. अभी आप किसी भी नॉर्मल शॉप से, स्टेशनरी से, जो भी आपको सिंपल 2 रुपीज़ वाली कलरफुल शीट्स मिलती हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो, उनसे आप अपनी स्ट्रिप्स कट कर सकते हो. ठीक है, दोनों साइड आप मार्क करो स्केल से और आप अपनी स्ट्रिप्स कट कर सकते हो. उसके बाद बेस पेपर के लिए अगर आपके पास अभी कुछ नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, आप कोई भी एक नॉर्मल आपके पास जैसे रफ़ कार्डबोर्ड्स होंगे, कोई हमारा सामान आता है ऑनलाइन और उसमें बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस आ जाते हैं,
तो आप वो एक कार्डबोर्ड का पीस कट करके उसके ऊपर अपनी कोई भी एक बेस शीट, जो आपके पास अगर कोई पतली शीट भी है, आप उसके ऊपर पेस्ट कर दो और फिर आप उसके ऊपर क्विलिंग स्टार्ट करो। तो ऐसे बहुत सारे लाइक होमली चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आप इनिशियली क्विलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि एज आई सेड व्हेन आई स्टार्टेड आई डिडंट हैव एनी ऑफ दीज फैंसी मटेरियल्स विद मी, तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। यू कैन डू इट दैट वे ऑल्सो। तो ये बहुत आपको लाइक इसमें ज़्यादा सामान की नीड नहीं है। ग्लू एंड ऑल ये सब आपके घर पे अवेलेबल होता है, नहीं तो आपको लोकल स्टेशनरी शॉप से भी ये मिल जाएगा, उसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। और क्विलर क्विलर भी इवन स्टेशनरीज पे इजीली अवेलेबल होता है, आप क्विलर भी वहाँ से ले सकते हैं। तो ये कुछ कुछ मतलब मटेरियल्स हैं जो आप नॉर्मली ले सकते हैं। और अगर आप एक बार क्विलिंग स्टार्ट करेंगे तो आई एम सेइंग यू आर गोना लव इट। फर्स्टली क्योंकि जब आप खुद से कोई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो एक अकम्पलिशमेंट जो आता है कि हाँ मैंने ये बना दिया, मैंने ये कर लिया, अच्छा किया, या एक क्रिएटिव साइड भी आपकी एनहांस होती है, क्रिएटिव स्किल्स आपकी एनहांस होती हैं। तो आप मतलब मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। इवन अगर आप वर्किंग हैं या फिर आपका कुछ और बिजनेस है कुछ, तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इट्स रियली अ रिलैक्सिंग काइंड ऑफ आर्ट, इट्स अ वेरी मेडिटेटिव आर्ट। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। इट्स रियली रियली थेरेपेटिक। तो अभी मैंने कुछ और कॉइल्स बना लिए हैं, और आपको भी बस ऐसे से कॉइल्स डिज़ाइन करते जाना है। एंड यू हैव टू जस्ट प्लेस देम इन द राइट पोजीशनिंग, या फिर जहाँ पर भी मैंने एक ट्रायंगुलर शेप एज आई टोल्ड की ऑलरेडी ले लिया है, तो अब मेरे को आइडिया है कि मुझे इसके अंदर अंदर ही इनको फिल करना है एक तरीके से। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप एक बेसिक ट्रायंगल शेप भी बना सकते हैं और उसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर क्विलिंग के जो आपके ये कॉइल्स हैं, राउंड्स हैं, इनको पेस्ट कर सकते हैं। सो इट कैन वर्क लाइक दैट ऑल्सो। तो कहीं पर मैंने छोटे कॉइल्स दिए हैं, कहीं पर बड़े कॉइल्स दिए हैं। आई एम नॉट टेकिंग द सेम साइज़ एवरीवेयर। और हाँ, आई टोल्ड यू ना कि अभी हम इसे 2 वे बना रहे हैं, हम इसे 1 वे कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो आई जस्ट टेल यू। और उसके बाद हम बनाएंगे टॉप ऑफ इट अ स्टार। स्टार को हम ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं करेंगे, हम एक आउटलाइनिंग से स्टार बनाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ही छोटा स्टार चाहिए होगा यहाँ पे। वी डोंट नीड अ वेरी बिग स्टार ओवर हियर। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये शीट है, अभी अभी तक मैं क्या कर रही हूँ, इसको ऐसे रोल कर रही हूँ वन साइड, इसको ऐसे रोल कर रही हूँ अदर साइड। ठीक है। तो अब मैं इसको अगर 1 वे बनाना है तो सिंपल इसको ऐसे रोल करूँगी। ठीक है। हाफ वे मैं यहाँ से लूँगी एंड देन यहाँ से, मतलब मैं इसको आधा रोल करूँगी एक साइड से। ठीक है, इस तरीके से। और फिर ये वाला जो मेरा रोल है इसको मैं रोल करना स्टार्ट करूँगी यहाँ से। ओके। तो इसको मैंने रोल कर दिया यहाँ से। ये हो गया हमारा 1 वे में। ठीक है। हम कुछ इस तरीके के कॉइल्स भी बना सकते हैं। और अब इसमें भी मुझे अगर एक छोटा एक बड़ा चाहिए तो मैं उसे एक छोटा एक बड़ा कर सकती हूँ दिस वे। Okay, so this also looks nice, and in this hamsa I have used these kind of patterns only, so you can see that. Okay, तो अभी तक के मैंने जितने कॉइल्स बनाए हैं मैं पहले उन्हें पेस्ट कर लेती हूँ, देन आई मूव फॉरवर्ड। तो ये मैंने, ग्रेट, तो ये मैंने बहुत छोटे बनाए हैं और मैंने साइड्स में पेस्ट कर रही हूँ, कुछ छोटे मैंने बीच में पेस्ट किए हैं। तो दिस वे वी कैन डू इट। ओके, ये मैंने एक थोड़ा छोटा बनाया है, इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ कॉर्नर्स में। आप चाहो तो आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हो आप बड़े साइज़ के बना सकते हो, दिस नॉट एन इशू। तो मैं एक बार इसको पेस्ट कर लूँ, देन आई विल शो यू द लुक।
उसके बाद सेम वे से हमें ये जो पूरा हमने एक ट्रायंगल फॉर्म बनाया है इसे करते जाना है। और अगर आप सच में लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन क्विलिंग, सो अगर आप बाद में भी ये सेशन देख रहे हैं तो इट विल बी ग्रेट कि अगर आप मेरे साथ साथ में इसे करते जाएंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं अरे ये तो हम इजीली बना लेंगे, छोड़ो ना, चलो वीडियो बंद करते हैं, हम खुद से बनाना स्टार्ट करते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर कोई हमारे जैसे होता नहीं है कि अगर कोई हमारे साथ में काम कर रहा है तो हम उसे और मतलब अच्छे से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वॉक करने जा रहे हैं, अगर हम अकेले वॉक करें तो शायद इतना नहीं चल पाते, बट अगर साथ में और लोग हैं तो वी जस्ट लाइक कि हाँ आज मज़ा आ रहा है, वॉक कर पाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप साथ में बनाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा साथ में करने में, साथ में बनाने में। तो आप वीडियो के साथ साथ बनाते जाइए एंड इन्जॉय करते जाइए। यस। और अगर फैमिली में आपके और भी लोग हैं तो आप उन्हें भी एंगेज कीजिए, आप उनके साथ बैठकर बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए अबाउट दिस आर्ट, अबाउट दिस क्विलिंग आर्ट कि ये क्या है, कैसे होता है। क्योंकि देर आर मैनी पीपल अभी भी जिनका आइडिया नहीं है कि क्विलिंग आर्ट क्या होता है। अभी भी दे फील कि क्विलिंग इज़ ऑल अबाउट मेकिंग इयर रिंग्स एंड ऑल। यस, because many people feel that it's all about just the earrings and the jewelry, but no, quilling is not only limited to jewelry, it is far more than that। हम उससे बहुत सारी बहुत चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, नॉट ओनली ज्वेलरी। क्योंकि स्टार्टिंग में होता यह है कि स्टार्टिंग में मैंने भी सिर्फ क्विलिंग के लाइक इंडिया में मैंने बच्चों के सेट्स ही देखे थे क्विलिंग के, जो कि गिफ्टिंग पर्पस से वी यूज़ टू गिव। तो उसमें बेसिक यही होता था, ज्वेलरी मेकिंग एंड ऑल होता था क्विलिंग का। बट क्विलिंग इज़ मच मोर देन दैट। क्विलिंग कार्ड्स, क्विलिंग फ्रेम्स, क्विलिंग बिग आर्ट वर्क्स, like I created one for a company based in Noida called Offshoot, and it was a very big work that I did। तो उनका बेसिकली उनका जो पूरा प्रॉपर लोगो था, दे वांटेड इट टू बी डन विद क्विलिंग। सो हाँ, यू कैन गिफ्ट ऑन बर्थडेज एंड सेवरल ओकेजन्स। तो मैंने उनका एक पूरा प्रॉपर फ्रेम डिज़ाइन किया था एंड इट वाज लाइक it was very big, around you can say 5 feet in length, एंड इट वॉज चैलेंजिंग ऑल्सो। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में कोई बड़ा प्रोजेक्ट या ऐसा कोई चीज़ करते हैं तो आपको नहीं समझ में आता है कि लाइक हाउ इट्स गोना लुक, हाउ इट्स गोना कम आउट, एंड यू आर डाउटफुल अबाउट इट। देयर इज़ नो इशू अबाउट दैट, बट you should carry on with that। Yes, there's an owl on my Insta. Yeah, that owl also took a lot of time because there was a lot of thinking process behind it. I wanted to make an owl. I have created owls in normal brown shades. I can show you that like in one of the live sessions. I have to see if it's with me. So I can show you that, but making that whole owl in just 1 hour is not possible. I can tell you the tips and tricks for that. Like if you are really interested in making that, then I can tell you the tips and tricks for that. You can just go on making with that, and then if you find any problem or there's like any issue, then I can surely help you with that. But we cannot make such things in just 1 hour, because here in Quillathon is a series that I have initiated basically to make people more aware about this quilling art, what it is, and because people feel that it's just a paper, it's not everyone feels this way, but yes, there are many people. So
Like I wanted to make them all see कि how time taking it is. It's not that कि आपने paper पकड़ा और it will be done. No, but yes, there are many and most people who appreciate it and who just loves this. Hello. So yes, owl cannot be made in an like cannot be made in an hour. Yes, it's true. But when we together will make people aware about this art, then surely they will come to know about what it is and how much hard work it takes to make one single project. So this is all about this only. So I am almost done. Just two more small coils and then we'll be done with the basic tree shape, and then I'll show you how it is looking and what is the use of taking a basic structure. ओके क्योंकि अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं लेते हो और बेसिक शेप का आपको आइडिया नहीं है तो फिर आपकी जो जो भी हम अभी ये पैटर्न बना रहे हैं, कॉइल्स डिज़ाइन कर रहे हैं, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा और वो एक प्रॉपर मतलब अच्छा लुक, बहुत अच्छा लुक नहीं देगा बेसिकली, आई मीन टू से दिस। तो अभी हमने एक ट्रायंगुलर फॉर्म रखा था। नो नो नो, देयर इज नथिंग टाइम पास, आपने बनाया है, दैट इज ग्रेट। नो प्लीज डोंट कॉल पीपल स्टूपिड, नो वन इज स्टूपिड, बट इट्स जस्ट लाइक कि अभी लोगों को आइडिया नहीं है अबाउट द आर्ट। वंस दे विल कम टू नो कि हाँ दिस इज ऑल्सो समथिंग, देन ऑब्वियसली दे विल, एंड देर आर स्टिल मैनी पीपल हु अप्रिशिएट। अब अगर आप जहाँ भी यू स्टे लाइक, तो ऐसा नहीं है ना कि हर कोई आपकी आर्ट को ऐसा ही बोलेगा कि नहीं नहीं ये बहुत बुरा है, दिस इज़ नॉट डन। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको प्रेज़ करेंगे, जो आपके आर्ट को भी प्रेज़ करेंगे, तो थिंक अबाउट द पॉजिटिव साइड। यस, अगर आप साथ में बना रहे हैं तो प्लीज़ आप पिक्चर्स साथ में, या फिर अगर आप बाद में भी कभी बना रहे हैं, कभी लाइव देखकर बना रहे हैं, तो प्लीज़ डू शेयर द पिक्चर्स विद मी। आई विल श्योरली शेयर इट ऑन माई इंस्टा हैंडल एंड माई फेसबुक टू। तो yes, just surround you with the positive people, positivity, and it'll be all good. तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने एक बेसिक शेप क्रिएट किया है, तो यू कैन सी ये एक ऑलमोस्ट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने आपसे बेसिक शेप की बात करी थी वो क्यों करी थी। थैंक यू। येस, दिस वीडियो विल बी अपलोडेड और आप बाद में इसको देख सकते हैं चैनल पे जाकर, जो लोग अगर लाइव नहीं हैं या फिर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं जो अभी इसे लाइव नहीं देख सकते, तो दे कैन वॉच इट लेटर ऑन। और आप देखो, अब आप इसमें देखो मैंने इसमें डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन यूज़ किया है, और मतलब ये आपको डिफरेंट शेड्स इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आप इसे अगर इस डायरेक्शन से देखेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अगर अब मैं कहूँ आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आपको डिफरेंट डिफरेंट लुक देगा, ठीक है। तो बेसिक शेप का देखो आप मुझे कितना फ़ायदा हुआ कि मैं इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से बना पाई। एंड यही गलती मुझसे इसमें हुई थी, इसमें मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे मिस कर दिया था। ये मैंने कुछ ईयर्स बैक बनाया था, तो अब आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। Okay, the name of the channel, okay, it's there, but like it's raw at craft, so इसमें कुछ ये बहुत पहले मैंने बनाया हुआ है, तो it's not that fine, I'm trying to make it a new one for that with proper logo, but आप बोल रहे हो तो मैं आपको एक सेकेंड, ओके आई शो यू इन द टुमारो सेशन, ओके, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा फिक्स हो रखा है। तो और ये एक पोर्ट्रेट है जो मैंने बनाया था, ये
डिब्रोयना का, फुटबॉलर का। आई शो यू ऑल दीज इन माई टुमारो सेशन। ओके, कल के सेशन में मेरे पास जो ये फ्रेम्स हैं मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो ट्री का अब आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया दोनों में क्या था। इसीलिए मैंने आज इसका यूज़ किया है। तो इट ऑल कम्स विद लाइक टाइम ओनली कि आपको चीज़ें पता चलती हैं। इट विल बी एन ऑनर कि अगर कोई मुझे रिप्रेजेंट करे एज अ पेपर गर्ल, आई वुड लव दैट। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका बेस। अब बेस भी हम बना लेते हैं सेम पैटर्न का यूज़ करके, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास कुछ ये शेड है। ठीक है, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ बेस के लिए। अगर आपके पास ब्राउन है या फिर कोई डार्क ब्लैक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम पैटर्न का यूज़ करके मैं बना रही हूँ इसका बेस। तो ये सब चीज़ें लाइक मैंने वो टाइम सीखी हैं जो मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि अगर आप न्यू टू क्विलिंग हैं तो आप उतना टाइम उसमें ना दे के आप उन मिस्टेक से जो मैंने करी हैं सीख सकें और आगे बढ़ सकें। इसीलिए बेसिक फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको आज बताया, दैट इज़ वाई मैंने आज सोचा कि वी विल डू अ क्रिसमस ट्री, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बना हुआ है, तो मैं रेफरेंस के लिए आपको वो दिखा सकती हूँ। और जो हम आज कर रहे हैं उसमें और आज में क्या डिफरेंस है मैं आपको वो बता सकती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं क्विलिंग में भी। ऐसा नहीं है कि येस इट इज़ क्वाइट सिंपल, बट इट इज़ क्वाइट सिंपल टू मेक, लेकिन उसमें एक्सपर्टाइज करना या फिर उसमें प्रॉपर फिनिशिंग लाना इज़ अ टास्क। उसके लिए आपको यू नीड टू डू अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, वो तभी आ पाएगा। उसके अलावा इसके कोई और तरीका इसके लिए नहीं है। फॉर दैट फिनिशिंग यू हैव टू डू अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। बस हाँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अगर आपको पता हो तो शायद अगर आपको वो चीज़ सीखने में 20 दिन लगने हैं तो वो आप 5 दिन में सीख लो। इसीलिए दिस इनिशिएटिव हैज़ दिस इज़ एन इनिशिएटिव दैट आई हैव स्टार्टेड। तो अब हम बेस में इसके कुछ इसको ऐसे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन सी दैट। और उसके बाद हम इसके टॉप पर प्लेस करेंगे एक स्टार। और क्विलेथॉन की सीरीज वंस इट्स एंड, तो इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड इन आयरिस फोल्डिंग, लाइक आई डू आयरिस फोल्डिंग ऑल्सो, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इफ़ आई गेट अ गुड रिस्पॉन्स देन आई विल स्टार्ट अ सीरीज विद आयरिस फोल्डिंग ऑल्सो, क्योंकि आयरिस फोल्डिंग मैंने देखा है बहुत लोग हैं जो करना चाहते हैं, लाइक देर आर मैनी पीपल, बट द इशू इज़ आई स्टे इन डेली एंड दे वॉन्ट ऑफलाइन क्लासेज एंड दे डोंट स्टे इन डेली। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं अगर हम एक ऑनलाइन, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि आइरिस फोल्डिंग भी क्या है। आइरिस फोल्डिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पेपर टेक्निक। Why not boys? Anyone and everyone can do this quilling art. It is not gender based art कि only girls can do or only boys can do. Anyone can do this art. It's an art, and art is never defined by gender. So anyone can do this art. So I'm just pasting my base of the tree and then I will be done with this. Okay, उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करेंगे अपने स्टार की तरफ। हम स्टार बनाएंगे, वी विल मेक द स्टार। ठीक है, तो अब हाँ, मैं आपको बोल रही थी कि अगर आप साथ में बनाना चाहें, लाइक अगर आप बाद में भी कभी ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, तो आप साथ ट्राई करो कि आप वीडियो के साथ साथ बनाते जाओ, क्योंकि उससे होगा ये कि क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि नहीं ये तो दिस इज़ वेरी इजी, फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी देखा, एंड देन जब उसे बनाने लगते हैं तो फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर वो वीडियो वापस से फॉरवर्ड एंड पॉज एंड
रिवर्स करके देखना पड़ता है, और उसमें टाइम अलग वेस्ट होता है। तो इट्स बेटर कि आप साथ साथ में बनाते जाओ, और साथ में बनाओगे तो ऐसा कुछ आपको इश्यू भी नहीं आएगा, एंड आप इजीली उसे 1 आवर में कंप्लीट भी कर पाओगे। So that's good, Kamal, that you have the knowledge about this art, and feel yourself to be special, that you have that knowledge that nobody else in your city has. So just grow with it, उसे और बढ़ाओ और लोगों को बताओ, क्योंकि शायद आप वो एक जरिया हो सकते हैं आपकी सिटी में, आपके स्टेट में, जिसके थ्रू ये आर्ट बहुत पॉपुलराइज हो जाए आपकी स्टेट में, आपकी सिटी में। सो जस्ट डू इट। डोंट थिंक कि मैं ही अकेला कर रहा हूँ तो और कोई क्यों। कोई बात नहीं, आप करो, आपके साथ हो सकता है कल को बहुत सारे लोग जुड़ जाएं। सो जस्ट कैरी ऑन। तो आप देखो, ये कुछ इस टाइप से अभी दिख रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 2 कॉइल और अटैच कर सकती हूँ, आई फील लाइक। तो मैं यहाँ पे 2 छोटे कॉइल्स और अटैच कर देती हूँ, एंड देन हम स्टार बनाएंगे। स्टार को मैं बहुत सिंपल रखने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट लाइक वेरी, बहुत ज़्यादा मतलब कि उसे फिल्ड नहीं करने वाली हूँ मैं उसे बहुत सिंपल रखूँगी। That is very, very nice. If you are thinking to do an exhibition of your frames, that will be a very good way to show your art to others. Very best of luck to you for that. Even if you are studying in school, you can also plan a exhibition at your school only. You can start from there. Or if some of your friends or any like school students are interested, then you can make them aware about this art, and you can also share. Okay, okay, you have already done there. Okay, okay, that's very good, that's great. And you can also share this live session link with them, if like if any one of them is interested in knowing more, or in, so they can watch it too. That's good. You are doing good with your art. You are like going for exhibitions and all. That's great. Just continue. So now I'll show you. I have placed 2 more coils at the bottom. So you can see. Okay. Now it's looking completely almost filled up. Okay. And this is the base part. This is done. So now I will make a star on the top of it. Star, I would like to go with. I can use the yellow color for the star. Thank you so much. So I'm making a star by just folding my paper. Okay, so I'm taking this much and I've just folded it this way. Thank you. And same way I have to do 10 foldings. Okay, like one is done. Now I'm again folding it. Same size चाहिए आपको लेकिन हर fold का. Okay, जिससे कि स्टार आपका सेम साइज का लगे। ये देखो 2 फोल्ड हो गए। ऐसे ही मैं इसको फोल्ड करती जाऊंगी, ठीक है। एंड आई हैव टू डू 10 फोल्ड्स। Now I am moving towards the fourth fold. तो
ऐसे ही आप इसको फोल्ड करते जाओगे और एंड में जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम इसे स्टार की फॉर्म में फॉर्म कर लेंगे। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। तो आप देखो, मैंने इसको कुछ ऐसे फोल्ड किया है। ओके, अब ये देखो, अब स्टार कैसा होता है, कुछ ऐसे होता है। तो आप उसको, ये देखो, सिंपल आप इसको ऐसे फॉर्म कर दीजिए एंड दिस इज अ स्टार रेडी। सो दीज आर लाइक सिंपल वेज टू मेक थिंग्स सिंपलर। ठीक है, उसके बाद ये जो एंड के दो फोल्ड्स हैं, बस आपको इनको साथ में जॉइन करना है और आपका स्टार रेडी है। तो मैं इसे जॉइन कर देती हूँ ग्लू लगा के। ग्लू बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो यस, अब देखो मैंने बस इसको एंड पॉइंट को पेस्ट किया है साथ में एंड द स्टार इज रेडी। बस इसको पेस्ट कर दूँ एक बार। ओके, तो यू कैन सी हमारे पास एक स्टार रेडी है एंड इट वाज वेरी वेरी सिंपल टू मेक। अब इस स्टार को मैं प्लेस कर दूंगी अपने क्रिसमस ट्री के ऊपर एट द टॉप। वही सिंपल तरीका है, ग्लू को लेना है, इसकी साइड लाइन सेट कर दूँ, ग्लू के ऊपर स्टार को पेस्ट करना है एंड आई हैव टू जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर। एंड स्टार मैंने लिया है येलो कलर में, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप पर एक स्टार आपको दिखाई देगा। ओके, एंड दिस इज़ द ट्री एंड दिस इज़, और आप डिफरेंस देख सकते हो लाइक दोनों में। तो इवन ये बहुत ज़्यादा फिल्ड अप है, बट स्टिल आई थिंक इफ़ आई टॉक अबाउट ब्यूटी तो मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। क्योंकि एक तो विद टाइम आपका आर्ट इम्प्रूव होता है। ये मैंने कुछ ईयर्स बैक बनाया था और इसको ही मैंने आज एक नए फॉर्म से बनाने का ट्राई किया और आपको भी मैंने बताया कि क्या इसमें मिस्टेक थी जो मैंने इसमें रिकवर की है, नहीं की है। ठीक है, तो ऐसे ही आप ट्राई करते रहें क्विलिंग एंड आप डेफिनेटली one day you will succeed in making a beautiful frame. Okay, सो दिस वॉज फॉर टुडे, दिस इज़ द क्रिसमस ट्री। कल हमने कार्ड बनाया था, उससे पहले हमने कुछ क्रिसमस डेकोर बनाया था आई थिंक। या सो दिस वॉज समथिंग वी डिड इन आवर वेरी फर्स्ट क्लास और आज थर्ड क्लास में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो यू कैन सी हम बहुत अमेजिंग चीज़ें आने वाले टाइम में बनाने वाले हैं। तो और कल आई विल डेफिनेटली ट्राई कि कल सेंटा क्लॉस बनाया जाए। वेलकम कमल। Okay, so I think this was for today, and I hope you all have liked and enjoyed the session. Sure, you can share it with me. You can share your work with me on Instagram. मैं description में अपने जो भी Instagram, Facebook handles हैं उनका link डाल दूँगी, आप वहाँ पर मुझसे contact कर सकते हैं। और अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं after this session, yes, we can do a mandala. I have done a different types of mandala. Avilai mandala I have done. I think abhi I'm not having anyone. They are all sold out. But yes, definitely you can find that mandala on my Instagram page. I will try to include that mandala also in this Quillathon session. So basically it's a 7 days सीरीज और इसमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही सिंपल बेसिक क्विलिंग कर रहे हैं या बेसिक शेप्स कर रहे हैं, नहीं। विद बेसिक शेप्स हम कैसे बहुत अच्छे और हाई लेवल आर्टवर्क्स बना सकते हैं, हम इसमें ये भी सीख रहे हैं। ठीक है,
ओके, ठीक है। तो हम इसमें वो भी सीख रहे हैं। यस, देयर इज अ मंडाला। थैंक यू। और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू so much for such appreciation. It feels so good. Thank you so much. So I think we can just end this session. This was the tree we made today. I hope you all must have loved it. और इसमें आप देखो हमने कितना एक ही पैटर्न का यूज़ करके वी क्रिएटेड सच ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। तो ऐसा नहीं है हम बहुत बेसिक टाइप ऑफ क्विलिंग कर रहे हैं, नहीं। हम देख रहे हैं कि हम बेसिक, अगर हम मुझे सिर्फ एक राउंड बनाना आता है तो उस राउंड से मैं क्या एक्सपेरिमेंट करके बहुत अच्छा बना सकती हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ बनाना आता है बट दे डोंट नो हाउ टू कंपाइल इट अप, उसको मैं जोड़ के क्या बना सकती हूँ, उससे कैसा अच्छा आर्टवर्क बना सकती हूँ। तो दैट इज वाई। ओके, so now we can just end this session. If you are new, please do subscribe. Thank you so much for joining the session. It was fun. Now we'll meet tomorrow again at 8:30 p.m. Bye bye.